Hello students, we have already done with our first chapter, okay, gravitation. We have completed the theory part of gravitation, okay. Today we are going to see how to solve problems, okay. So first we will solve problems which are given in your book, okay, which are solved in your book. First we will see that and then we will see the other problems, okay. So to solve problems, what is more important is formulas, okay. You should know all the formulas. सारे formulas आपको by heart होने चाहिए. अगर formula आपको पता है, you can put the values in the formula and you can find out the value whatever is asked to find out, right? Okay. So I have list out formulas from first chapter, okay, your gravitation chapter, okay. तो आपको क्या करना है? You have to make such formula book, okay. Take one small book, okay, and in that book, okay, list out all the formulas, okay. जितने भी आपके मतलब सपोज फिजिक्स है या फिर साइंस है, तो साइंस के लिए एक बुक बनाओ, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे फॉर्मूलाज आप लिखने वाले हो. एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसके पूरा फॉर्मूलाज का लिस्ट आपको लिखना है, ठीक है. एंड देन अगर आपको स्पेशली बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलाज, ओके. आपको क्या करना है की रोज एकदा सगळे फॉर्म्युले बघून घ्यायचे. सगळे फॉर्म्युले लिहिल्यानंतर ना रोजच्या रोज एक 5 मिनटं काढून 10 मिनटं काढून सगळे फॉर्म्युले व्यवस्थित बघून घ्यायचे आहेत. जर तुम्ही असं रोज केलं तर तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले बरोबर लक्षात राहणार, ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. ओके. सो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है फॉर्मूलेज का. लेट अस सी क्या क्या फॉर्मूलेज है फर्स्ट चैप्टर में, ओके. फर्स्ट इज these three equations, Newton's three equations, okay. These three equations are, you have done this equation in your 9th standard, okay. So you should know these equations. V is equals to u plus at, okay. We have seen these equations in free fall. मैंने आपको explain किया था ना free fall में, और ये equations हम लोग ने use किया था, right. So first is v is equals to u plus at. Second equation, s is equals to ut plus half at square. Third is v square is equals to u square plus 2as. Now other important thing, you should know what is the meaning of v, what is the meaning of u. बराबर है, उनका मीनिंग क्या है, उनका नाम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ओके. सो मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज v. yes, v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, okay. But if we are in gravitation, if you are solving problem of gravitation, then a should be replaced by small g, that is acceleration due to gravity, okay. That you know, okay. Then t is time. S is what? S is not speed, S is distance. ये वाले केस में S क्या है? डिस्टेंस है और हाइट है, ठीक है. देन या तो ये सारी चीज़ें बाकी सब वापस रिपीट हुआ है. तो दीज आर दी थ्री इक्वेशंस यू शुड नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके. नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव सीन दिस एंड दिस इज important and this is simple, okay. What is that? F is equals to capital G m1 m2 upon d square, where F is gravitation force or force of gravity, okay. G, capital G is universal gravitation constant, okay, okay, whose value is constant 6.63 into 10 raised to minus 11. Then m1 is mass of first object, m2 is mass of other object, d is distance between the two objects, okay. Then नेक्स्ट फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये है न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन, ओके. इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसमें सेकेंड जो लॉ है उसका फॉर्मूला है ये न्यूटन सेकेंड लॉ. दिस इज इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड लॉ, ओके. सो व्हाट इज दैट? एफ इज इक्वल्स टू एम ए, ओके. एफ इज इक्वल्स टू एम ए, वेयर एफ इज फोर्स, नॉट ग्रेविटेशन फोर्स बट एनी फोर्स, ओके. एफ कैन बी एनी फोर्स, ग्रेविटेशन हो सकता है या कोई और फोर्स हो सकता है. What is m? M is mass, a is acceleration, okay. So m is mass, a is acceleration. So ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है. Then next is g, okay. g का फॉर्मूला क्या है? What is g? Acceleration due to gravity. g is equals to capital G capital M divided by r square. और दो फॉर्मूले हो सकते हैं. सेम फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, बट इंस्टेड ऑफ r स्क्वायर यहाँ पे लिखा है कैपिटल R स्क्वायर. ना दोनों में डिफरेंस क्या है? If the object is at the surface of earth, then distance is capital R, that is radius of earth. समझ में आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो भी ऑब्जेक्ट यूज किया है, वो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो उसका ऑब्जेक्ट का एंड अर्थ का डिस्टेंस कितना है? R, that is distance between object and earth, that is radius of earth, okay. And what is small r? Small r is any distance, मतलब
अगर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे नहीं है, कुछ हाइट पे है, देन इट विल बी आर स्क्वायर, ठीक है। देन ये सब मैंने समझाया था जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, ओके। सो देन potential energy, next is potential energy. Potential energy, we have already seen the formula. What is that? Minus G capital M small m r plus h, okay, where capital M is mass of earth, small m is mass of object, capital R is mass of radius of earth, and small h is height. Then next is kinetic energy. What is kinetic energy? Half m v square, okay. M is mass, v is velocity. Then next is v escape, that is escape velocity. So escape velocity का फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है. What is escape velocity? It is equals to under root of 2 gm upon r, or escape velocity is equals to under root 2 small g capital R, okay. So दोनों फॉर्मूले कैसे डिराइव करना है वो भी हम लोग ने देखा है. So these are the list of formulas you have to use to solve the problems, okay. So first let us start with the problem given in your book, okay. This is the problem, okay. Now to solve any problem, first what you should know the formula. Second, you should know what is given in your problem. जो भी प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया है वो आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए, ठीक है. सो if you are not able to identify what is given, okay, read the problem once or twice or thrice, okay. 3 बार, एटलीस्ट 2 बार 3 बार अच्छे से रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ओके. सो लेट अस सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट दे आर सेइंग. Mahindra and Virat are sitting at a distance of 1 meter from each other, ठीक है. Mahindra and Virat, okay, ये दो लोग हैं and they are sitting at a distance of 1 meter from each other. दोनों बैठे हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर. Their masses are 75 kg and 80 kg respectively. Whenever they say respectively, इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट, सपोज महिंद्रा फर्स्ट है और फर्स्ट मास 75 है तो महिंद्रा का मास कितना हुआ? 75. एंड विराट, सो एंड के बाद जो भी दिया है 80 kg, दैट इज विराट्स वेट, ओके. So their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? So what we have to find out? We have to find out the gravitational force. दोनों के बीच में gravitational force कितना है वो हमको find out करना है, okay? So I think this is simple, very simple, okay? What they are asking, okay? First we will write what is given. We will write what is given and then what is to be find out, okay. What they are saying, Mahindra and Virat. So suppose ये है Mahindra and ये है Virat, okay. This is Mahindra and this is Virat, okay. Now see here Mahindra and Virat, ये दो ऑब्जेक्ट हैं. हम लोग ने देखा है ना ऑब्जेक्ट M1 M2, मास M1 मास M2, okay. So right now these two are, okay, object for us, okay. So first is M and that is Mahindra, second is Virat, okay. And distance between them is how much? 1 meter, okay. Distance between them is 1 meter, okay. Then mass of Mahindra is 75 kg and mass of Virat is 80 kg, okay. Then what else is given? That's it, इतना ही दिया है. अभी क्या पूछा है? फाइंड आउट, ओके. व्हाट इज टू बी फाइंड आउट? फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. मतलब एफ, कैपिटल एफ आपको फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल एफ आपको, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड आउट करना है. अभी दिया क्या क्या है देखो, यहाँ से डेटा मिल गया पूरा, क्या क्या दिया है, ओके. सपोज दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट. देन मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज M1. सो M1 इज गिवन. M1 इज हाउ मच? 75 kg. M2 is 80 kg. And what is this distance? Distance you can say D. So distance D is 1 meter. Okay, understood. Now find out क्या करना है? F find out करना है, ठीक है. Now we all know the formula. We all know the formula of gravitational force. Gravitational force का formula क्या है? F is equals to capital G M1 M2 upon D square. As simple as that, okay. Now you all know the value of G. तो वैल्यू ऑफ G आपका जो भी है वो आप लिखो यहाँ पे क्या है?
6.673, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे 3 भी लिख सकती हूँ, बट डेसिमल पॉइंट के बाद इवन इफ यू कंसिडर 2 प्लेसेस, ओके, और 2 डिजिट्स, दैट इज फाइन. सो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 भी अगर आप लेते हो तो आपका आंसर करेक्ट आता है. सो आई एम टेकिंग ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ओके, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है. Into, so what is the value of G? 6.67 into 10 raised to minus 11. Don't forget to write 10 raised to minus 11. That is important, okay. Then what is the value of M1? M1 is 75 kg. Okay, 75 kg. What is the value of M2? M2 is 80 kg. 80 kg divided by, what is this? D. So D square. D square तो क्या आएगा? 1 meter the whole square, ठीक है. 1 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे. आर यू गेटिंग? ओके. नाउ, ओके, नाउ what is square of 1? Square of 1 is 1. So this much divided by 1 is what? This value, okay. 8 divided by 1 is 8. 5 divided by 1 is 5, okay. So now next is the mathematical, I mean how you solve this mathematically, okay. This is not simple multiplication. So hope you all know how to do multiplication. Still if some of you are having problem, okay, तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है. बट आगे आगे मैं एक दो सॉल्व करूँगी सम्स, बाकी का कैलकुलेशंस आप खुद से करो, ओके, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ओके. सो लेट अस सॉल्व दिस वन, ओके. सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? नाउ लेट अस सी, ओके. एक चीज़ ध्यान रखो, whenever you solve problem, always keep 10 raised to anything separate. 10 raised to जो भी है उसको अलग से ही रखना है, उसको इसमें मिक्स नहीं करना है, ओके. सो आई विल राइट 6.67 into 75 into 80 again, okay. To make it simple I can write this 80 as 8 into 10, बट अभी के लिए जाने दो, मैं इसको 80 लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग इट एज 80 एंड 10 raised to minus 11, ओके, डिवाइडेड बाय 1 is 1, ओके. नाउ डू द मल्टीप्लिकेशन. कैसे करोगे? 75 into 80, ओके. सो आई होप यू ऑल नो still 75 into 80. So 80 is what? 80 is what? 8 into 10. So I'm taking only 8 right now. I'm taking this 10 as it is, okay. I'm keeping this 10 as it is, okay. So see, I can write here, to make the calculation simple, I am writing 75 into 8 into 10 into 10 raised to minus 11, okay. 10 को बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है. 75 into 8, okay. Now what is the calculation? 8 5s are 40, okay. 8 7s are 56. 56 plus 4 is 60. So what is the answer? 600, okay. So answer of this is 6.67 into 600 into 10. So 600 into 10 is 6000. So 6000 into 10 raised to minus 11, ठीक है. नेक्स्ट, अभी ये कैलकुलेशंस आ गया. अभी इसको सिंपल करने के लिए व्हाट आई विल डू, 6.67 into दिस इज व्हाट 6000. सो मैं अभी क्या करूँगी, 6000 मीन्स व्हाट, 6 into 1000 is 6000. सो मैं इसको 6 लिख रही हूँ एंड 1000 में अलग से लिख रही हूँ, ओके. तो अभी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई दिस 6.67 by 6 एंड कीप दिस इज एज इट इज. फिर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है. सो 6.67 into 6, okay. So 6.67 into 6, okay. Do the calculation, okay. What is this? 6 7s are 42, 6 6 are 36 plus 4 40, 6 6 are 36 plus 40 plus 4 is 40, okay. And now if you see, now this is the answer and now it is the time to put decimal value. तो decimal value कब put करोगे आप? If you see this number, decimal point or this point is after 2 digits, okay. 2 digits के पहले, okay, 2 digits के पहले ये point है. तो आंसर में भी I will take
2 digits and then I will put the decimal point. So 1, 2, then decimal. So 1, 2, then decimal. So my answer becomes 40.02. Okay, so I will write here I will write 40.02 into 1000. Okay, one more thing, can I write this 1000 as 10 raised to 3? Do you have any problem? Yeah, can I write this 1000 as 10 raised to 3? Of course I can write. Okay, 10 raised to 3 का मतलब क्या है पता है? 10 raised to 3 का मीनिंग है 3 zeros on 1. कितना? 3 zeros on 1. अभी यहाँ पे मिस्टेक मत करो. 10 raised to 3 का मतलब 3 zeros on 10 नहीं. 10 raised to 3 का मतलब है 1 पे 3 जीरो. समझ में आ गया? सो इफ आई हैव दिस वैल्यू आई कैन राइट दिस एज 10 raised to 3. सी 1 raised to 3 में नहीं लिख सकते. एक्चुअली ये 1 raised to 3 रहना चाहिए. 1 पे 3 जीरो. बट 1 raised to 3 इज व्हाट? 1 raised to anything is 1. So that is why we cannot write this. So we write it as 10 raised to 3. So 1000 is 10 raised to 3. If I have 100 then I will write it as 10 raised to 2. मतलब 1 पे 2 जीरो. So 10 raised to 2. Are you getting? Okay. So I am writing this as 10 raised to 3000 and मतलब ये 1000 को 10 raised to 3 लिखा and this is 10 raised to minus 11. Okay. Now मैथ्स में इतना तो आपको पता होगा. अगर बेस सेम है, if base is same, can I add the powers? ये क्या है? पावर है. तो ये रेस टू पावर जो है, कैन आई ऐड देम? यस ऑफ कोर्स आई कैन ऐड देम. सो -11 + 3 कितना होता है? -11 + 3 कितना? -8. ओके, बराबर है ना? इतना तो आता है सबको, राइट? सो 40.02 into 10 raised to -8. Okay, what is this? F. Don't forget to write F over here. This is gravitational force. Okay, so this is my final value, which is 40.02 into 10 raised to -8. अभी फोर्स का ये क्या है? यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट इज न्यूटन. सो डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट. इफ यू डोंट राइट द यूनिट आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक है, सो पुट द यूनिट एज न्यूटन. ओके, so answer is 40.02 into 10 raised to -8. Okay, now in your book answer is given as 4.002 into 10 raised to -7. अभी आप मुझे बोलोगे कि मैम हमारा आंसर ऐसे आया है, बुक में ऐसे दिया है. बोथ द आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, दिस इज जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन. मैथमेटिकल क्या बोलते हैं उसको? सॉल्व करने का एक अलग से तरीका है. ओके, सो they have taken different calculation, we have done different calculations. Okay, अभी यहाँ पे 40 है. 4 पॉइंट के पहले 4 जीरो है, तो यहाँ पे 10 raised to -8 है. इफ आई राइट दिस एज 4 देन आई हैव टू राइट 10 raised to -7. ओके, तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं. यहाँ पे अगर आपको कन्वर्जन करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल, इफ यू आर टेकिंग दिस पॉइंट टू लेफ्ट, ध्यान से सुनो, इफ यू आर टेकिंग दिस डेसिमल पॉइंट टू लेफ्ट then you have to decrease one number from here. Okay, so it will become 4 point and यहाँ पे बनेगा -8 का -7. Okay, so I hope you know how to solve this maths. Okay, so this is your answer which is given in your book. Okay, ये आपकी बुक का आंसर है. ठीक है, understood? Okay, now so this is the first numerical or first sum. Now let us see the second one. Okay, अभी यहाँ पे उन्होंने second दिया है. So let us see second क्या बोल रहा है. In above example मतलब same example हमको consider करना है. We are going to consider the same example and we are going to solve the second problem. Okay, in above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless. The bench on which Mahindra is sitting is frictionless मतलब क्या? एकदम स्मूथ बेंच है, वहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है. ओके, फ्रिक्शन, आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन म्हणजे काय? घर्षण. आपण हात असं करतो, ते हात कसं एकदम फटाफट मूव्ह होतात का नाही? कारण त्याच्यामध्ये काय आहे? घर्षण आहे, फ्रिक्शन आहे. ठीक आहे, म्हणजे ते घासले जातात, तर दॅट इज फ्रिक्शन. ओके, सो फ्रिक्शन, सॉरी. ओके, सो बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब वहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है. दैट बेंच इज वेरी स्मूथ. सो महिंद्रा को कुछ भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे. जब वो मूव होगा ही विल मूव वेरी स्मूथली, वेरी फास्ट. ओके, सो it is frictionless. Starting with 0 velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? Okay,
विल दिस वेलोसिटी चेंज विथ टाइम एंड हाउ? ठीक है, सो रीड नाउ. अभी क्या पूछा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके. ओके, रीड दिस केयरफुली वन मोर टाइम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड. तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमारा काम है टू राइट व्हाट इज गिवन. ओके, सो इफ यू रीड दिस कंप्लीटली, ओके, ओनली वन डेटा इज गिवन, दैट इज what is that, 1s. 1s मतलब क्या, सेकेंड. सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का. मतलब क्या दिया है, दे हैव गिवन टाइम. ओके, सो वी विल राइट फॉर सेकेंड एग्जाम्पल. what is given, t, time is given. How much it is, 1 second. Okay, time is 1 second, that is fine. Okay, now what is to be find out. अभी find out क्या करना है, तो देखो, in above example, assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless, starting with zero velocity, what will be Mahindra's velocity of motion towards Virat after 1 second? अगर ह्याचा मिनिंग काय आहे, जर महिंद्रा विराटकडे खेचत जात असेल, म्हणजे तो घसरत नाही, काय म्हणतो, स्लाइड होत असेल महिंद्राकडे, बिकॉज द बेंच इज फ्रिक्शनलेस, तो महिंद्राकडे जातोय काहीतरी वेलॉसिटीने, तर त्या वेलॉसिटीची व्हॅल्यू किती आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, now that means you understood what is to be find out. We will find out, so we have to find out the velocity of motion. ठीक है, किसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, विराट का या महिंद्रा का? महिंद्रा का, बिकॉज महिंद्रा इज मूविंग. ओके, सो व्हाट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड. ठीक है, नाउ वन थिंग इज फिक्स्ड, दैट वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी. व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, वेलोसिटी. ठीक है, आप लोग बोलोगे ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना, उसमें क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, नो प्रॉब्लम. ओके, बट क्वेश्चन हियर इज which velocity is to be find out, because we have got two velocities. Okay, now don't forget this, don't forget this. We have got two velocity, one is u and other is v. एक वेलोसिटी कौन सा है, u है, दूसरा कौन सा है, v है. u मीन्स व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, v मीन्स व्हाट, फाइनल वेलोसिटी. नाउ क्वेश्चन इज कि आपको कौन सा वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड आउट करना है या फाइनल वेलोसिटी v फाइंड आउट करना है. वो अभी कहाँ से समझेगा, प्रॉब्लम से ही समझेगा, यहीं से, फ्रॉम हियर ओनली यू विल अंडरस्टैंड. सो रीड इट केयरफुली. यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से देखो, स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी, दे हैव गिवन हिंट कि स्टार्टिंग विथ जीरो वेलोसिटी. तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग का वेलोसिटी जीरो है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल, सो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. दैट मीन्स दे हैव गिवन यू वन मोर डेटा, दैट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. ओके, मीटर पर सेकेंड यू कैन राइट, उसका वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड. ओके, सो स्टार्टिंग वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. मतलब एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि यू दिया है और 0 है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, वी फाइंड आउट करना है. आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है. अंडरस्टूड. ओके, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो. व्हाट विल बी महिंद्राज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड. मतलब 0 से सब 1 सेकेंड मतलब क्या, कि सपोज 0 सेकेंड से स्टार्ट किया और 1 सेकेंड होने के बाद, सो 0 सेकेंड से जब वो स्टार्ट कर रहा है, इट विल हैव सम इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर 1 सेकेंड मतलब इट विल, आफ्टर 1 सेकेंड देयर विल बी फाइनल वेलोसिटी. सो यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी. बिफोर 1 सेकेंड नहीं बोला है उन्होंने, आफ्टर 1 सेकेंड बोला है, तो आफ्टर 1 सेकेंड डेफिनेटली यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी. अंडरस्टूड. ओके, नाउ डेटा इज गिवन कि t इज गिवन, u इज गिवन, v इज टू बी फाइंड आउट. अभी आप बोलोगे v का फॉर्मूला क्या है मैम, v कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 इक्वेशंस लिखा है. ओके, सी दिस केयरफुली, वी हैव रिटन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स 3 इक्वेशन. अभी यहाँ से आपको v फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ व्हाट यू विल से, ओके, आप क्वेश्चन पूछोगे मुझे कि मैम यहाँ पे तो 2 v है, मतलब 2 ऐसे फॉर्मूलाज है, इन 2 इक्वेशंस वी हैव फाइनल वेलोसिटी. सो विच इक्वेशन शुड बी यूज्ड, कौन सा, दोनों में से कौन सा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए. ओके, सो कौन सा इक्वेशन आप यूज़ करोगे, जिसमें ज़्यादा डेटा आपके पास होगा वो वाला इक्वेशन आप यूज़ करोगे. ओके, सो what you have time, you have initial velocity and you have to find out final velocity. Okay, if you see this one, if you see the third equation, so third equation में t नहीं है, टाइम है ही नहीं, बराबर. आर यू गेटिंग, ध्यान से सुनो, 3 इक्वेशन है. ओके, अभी v फाइंड आउट करना है. सेकेंड इक्वेशन में v करके कुछ भी नहीं है, सो सेकेंड इक्वेशन इज कैंसल्ड, वो नहीं हम लोग सिलेक्ट करने वाले. देन वी आर लेफ्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन. हियर ऑल्सो v इज देयर, हियर ऑल्सो v इज देयर.
Now which equation to be selected, okay, to solve the problem. But if you see the third equation, in third equation time is not there and they have given you time. इसका मतलब क्या है, ये भी कैंसिल हो गया. So see the first equation. Yes, in first equation time is there, initial velocity is there, final velocity is there. Now you can find out the value of v. So we will select first equation. So what is first equation? V is equals to u plus at. Okay, v is equals to u plus at. ठीक है. Now क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है. u is given 0, t is given 1 second. Now the problem is you don't have acceleration. Do you have acceleration? No, there is no acceleration. Now again प्रॉब्लम अराइव्स. ओके, कि अभी क्या करना चाहिए, ए कैसे फाइंड आउट करना चाहिए. तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है. ए का फॉर्मूला है हमारे पास. क्या है ए का फॉर्मूला? ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट acceleration, we have this formula, F is equals to m into a. What is that? F is equals to m into a. Okay, this is second law of motion, Newton's second law of motion. F is equals to ma. तो ये ध्यान में रखो, ठीक है. So to find a acceleration, we will use F is equals to m a formula. ये ध्यान में रखो. ओके, हर एक फॉर्म्युला ध्यान में रखने के लिए या लक्षात ठेवण्यासाठी काहीतरी ट्रिक करायची. हा फॉर्म्युला कसा लक्षात ठेवणार? एफ इज इक्वल्स टू एम ए म्हणजे फादर इज इक्वल्स टू मदर, असं काहीतरी करून काहीतरी ट्रिक करा म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. सो एफ इज इक्वल्स टू एम ए. ओके, सो वेर एफ इज फोर्स, एम इज मास, ए इज एक्सेलरेशन. ओके, अभी एक्सेलरेशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आई शुड नो व्हाट इज द फोर्स and I should know the value of mass. Okay, so do I have force and mass? Yes, of course I have force and mass. Force कहाँ से मिलेगा? फोर्स मिलेगा ये फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल से और फर्स्ट प्रॉब्लम से, बिकॉज ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन दी अबव एग्जाम्पल. तो यही एग्जाम्पल हमको कंसिडर करना है. सो फोर्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड आउट विच इज 4.00 into 10 raised to minus 7. So I can use that force. So what is force? 4.00 into 10 raised to minus 7 is equals to mass. Okay, now mass किसका है यहाँ पे? कौन सा मास? अभी विराट भी है, महिंद्रा भी है, तो किसका मास हमको कंसिडर करना चाहिए? कौन मूव हो रहा है? वो इज मूविंग, महिंद्रा इज मूविंग. सो वूज मास शुड बी कंसिडर्ड महिंद्राज मास. सो महिंद्रा का मास कितना है? महिंद्रा का मास है 75 kg. सो मास ऑफ महिंद्रा इज 75 into acceleration. Okay, into acceleration. So if I want to find out a acceleration, I will keep a alone and I will take this 75 this side. Okay, so 4.002, sorry यहाँ पे 2 नहीं लिखा. Okay, 4.002 into 10 raised to minus 7 divided by 75. Okay, so ये डिविजन जो है वो आपको करना है. ओके, डिविजन कैसे करोगे? डिवीजन करने के लिए ना आप क्या करो, ये 10 raised to minus 7 है, उसको ऐसे ही रहने दो. ओके, डोंट टच दिस 10 raised to minus 7. ओके, लास्ट में जब हमको वैल्यू मिलता है वी कैन एडजस्ट दिस वैल्यू. ओके, सो कीप दिस एज इट इज. ओके, एंड डिवाइड दिस 4.002 by 75. ओके, सो कैलकुलेशंस विल टेक लॉट ऑफ टाइम. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना एक कैलकुलेशन किया है सेम, और मैंने कैलकुलेट करके देखा है. ठीक है, अभी मैं और एक चीज़ करूँगी. व्हाट आई विल डू, सी, dividing this 4.002 by 75 is very difficult. So मैं अभी क्या करती हूँ, I will write this as 4002 मतलब 4002. ओके, एंड तो आप बोलोगे मैम ये पॉइंट कहाँ जाएगा? What I will do, I will write this point in terms of 10 raised to something. ओके, अभी 10 raised to something में क्या लिखूंगी? अगर पॉइंट है और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है, सपोज हियर आई हैव 1 2 3 नंबर्स, सो आई कैन राइट दिस एज 10 raised to minus 3. ओके, दिस पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है, ओके, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है, ओके, उतना डिजिट्स का नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. सो सपोज हियर आफ्टर पॉइंट आई हैव 1 2 and 3 numbers, so I will write 10 raised to minus 3. Are you getting? Into 10 raised to minus 7 as it is, divided by 75. Now you can divide 4002 by 75 easily. Okay, कैसे सॉल्व किया देखो, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है. ओके, 75 4002 डिवाइडेड बाय 75. तो वो कैसे करोगे आप? वो कैसे करोगे? ओके,
I will divide first I will divide both of them by using 5. मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल वापस सॉल्व करके दिखाती हूँ. सी सॉल्विंग दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके, सो बाद में मैं दूसरे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, वो आप खुद से अच्छे से सॉल्व करो. नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आई विल हेल्प. ओके, सो दिस इज 4002 डिवाइडेड बाई 75. ओके, नाउ 5 यूज़ करेंगे हम लोग. 5 के इसमें आता है ये. ओके, सो व्हाट इज़ दैट? 5 1s are 5, 2 बचा. ओके, बिकॉज दिस इज 7, सो 5 6 7 2, सो 5 5s are 25. ओके, हो गया. देन व्हाट इज दिस? 5 1s तो नहीं आएगा, सो 40 आई विल टेक 40 बराबर है. तो 5 8s are 40. देन 40 के बाद 0 है. 0 तो ऐसे 0 तो है नहीं हमारे पास, आई मीन 5 में, तो आई विल राइट 0 एज इट इज़. देन अगेन आई हैव 2, सो 2 इज ऑल्सो नॉट, सो अगेन आई विल राइट 0. ओके, एंड देन आई विल टेक डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 20. इट विल बिकम 20. सो 5 सॉरी. ओके, सो 5 4s are 20. ओके, सो ये आया मेरा ये वैल्यू. नाउ आई एम लेफ्ट विथ 800.4 divided by 15. So again by using 5 you can divide this, again by using 3 you can divide this. Okay, and you can find out the answer. See, I have done the calculations over here. If you see this one, I have done this calculation. Okay, तो ऐसे आपको calculations करना है. So finally after doing calculation I am getting this value. A is equals to 5.37 into 10 raised to minus 9. ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है? 5.37 into 10 raised to minus 9. ओके, एंड एक्सेलरेशन का ये क्या है? यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, नाउ एक्सेलरेशन मिल गया. सो अभी एक्सेलरेशन अगर हमने फाइंड आउट किया तो can I put the value of acceleration over here and can I find the value of v? Yes. So what is v? V is equals to u plus at. Okay, this is according to Newton's first equation. v find out करना है. u का value is 0 meter per second, so I will put 0 plus acceleration is 5.37 into 10 raised to minus 9 and a into t. तो t का value क्या है? 1 second. So I will write t as 1 second. Okay, so v is equals to, okay, 0 plus anything is that value, so 0 को जाने दो, 0 गया. So कितना बचा? 5.37 into 10 raised to minus 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये वैल्यू है आपका वेलोसिटी का. सो ये वैल्यू है आपका वेलोसिटी का. अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट the velocity? Okay, if they are asking to find out velocity, we have 3 equations. Okay, use any one, okay, which is valid. Okay, और जिसका डेटा आपके न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, ओके, वो वाला या ते इक्वेशन आपण यूज करणार, प्रॉपर इक्वेशन यूज करणार आणि व्हॅल्यू, फायनल व्हॅल्यू जी आहे ती आपण फाइंड आउट करणार. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. ओके, सो फॉर टुडे these 2 problems. Now next lecture we will solve more problems. Okay.